Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss a chapter named Jacobians. This is important for all the students who are pursuing engineering or BSc degree or MSc degree in university. First of all, I would like to discuss definition and some problems of Jacobians. Next, properties of Jacobians. Next, we will see chain rule of Jacobians. Next, the sufficient condition of Jacobians. Next, Jacobian of implicit functions. Next, partial derivatives of implicit functions by Jacobians. स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग ये जो डिफिनेशन है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. So without skipping my video, watch full video so you will be benefited for your examinations. So first of all, I would like to discuss definition and some problems related to Jacobians. So Jacobian क्या है? If u and v are two functions, ये दो functions है of two independent variable. X and y, two independent variables x and y, then the determinant so what kind of determinant or determinant का कैसा होगा? Here if u and 2 are two functions of two independent variable x and y, that means u is a function of x and y. Here x and y are two independent variables. x and y ये जो है ना वो दो independent है each other. And b is a function of x and y, then the determinant. So कैसा होगा determinant? Del first क्या है u, so del u by del x and del v by del u by del y. नेक्स्ट होगा del v by del x and del v by del y. ये जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग बोलेंगे जैकोबियन ऑफ u and v with respect to x and y. So what happens if there are three variables? Suppose u, v and w are three functions. Three functions of three independent variables. So क्या क्या होगा? three independent variable. Let us suppose x, y and z. That means u is a function of three independent variables x, y and z. v is a function of three independent variables x, y, z. And u, v, w is a function of three independent variables x, y, z. Then the determinant कैसा होगा? फर्स्ट फंक्शन क्या है? del u. सो क्या होगा? del u by del x, del u by del y, del u by del z. नेक्स्ट क्या फंक्शन क्या है? v. सो del v by del x, del v by del y, del v by del z. नेक्स्ट थर्ड फंक्शन है w. सो यहाँ पर क्या होगा? del w by del x, del w by del y, del w by del z. ये जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग बोलेंगे, दिस डिटर्मिनेंट इज नोन एज द जैकोबियन ऑफ u, v and w with respect to three independent variables x, y and z. सो ये जो यहाँ पर जो मैंने जैकोबियन लिखा है इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो हम लोग दिस जैकोबियन इज डिनोटेड बाय डेल फंक्शंस क्या है? u and v. तो ऊपर में होगा u, v एंड इधर होगा x, y. ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं j ऑफ u, v बाई x, y. ओके. और ये जो डेफिनेशन लिखा है इधर कैसे लेंगे? यहाँ पर होगा डेल ऑफ फंक्शन क्या है? देयर आर थ्री फंक्शंस u, v, w. सो ऊपर में होगा u, v एंड w एंड नीचे में होगा
डेल ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या क्या, एक्स वाई जेड, सो एक्स वाई जेड ऐसे हम डिनोट करते हैं. सो हेयर इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा, साइन थीटा. इवेलुएट डेल एक्स वाई बाई डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई. सो फर्स्ट we will solve this and after that we will solve this. So here देखो इधर जो x है ना, x क्या, x किस किस का फंक्शन है, r एंड थीटा. ये जो r एंड थीटा है वो इंडिपेंडेंट है आपस में, मतलब ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स r एंड थीटा एंड y इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ r एंड थीटा. सो हम लोगों को बोला है कि जैकोबियन फाइंड करने के लिए डेल ऑफ x कॉमा वाई बाई डेल ऑफ r कॉमा थीटा. सो कैसे हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि ये फंक्शंस क्या है, x एंड y आर ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स r एंड थीटा. तो जैकोबियन का डेफिनेशन से क्या होगा, डेल x बाई डेल x होगा, डेल x बाई डेल r, सो डेल x बाई डेल थीटा. ऊपर में एक फंक्शन कंप्लीट करूंगा, डेल x, नेक्स्ट क्या होगा, डेल r डेल थीटा. इसके बाद क्या होगा y, सो क्या होगा डेल y बाई डेल r, डेल y बाई डेल थीटा. ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना होगा इधर डेल x बाई डेल r क्या होगा. तो गिवन है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा. सो हम लोग इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r, दैट मीन्स डेल x बाई डेल r. सो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगा पार्शियल डेरिवेटिव में. ये दो फंक्शंस है, r वेरिएबल्स है r एंड थीटा. हम लोग x को r के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा क्या होगा, कांस्टेंट. ये टर्म जो है ना ये कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा cos थीटा, और r का डेरिवेटिव क्या है 1. नेक्स्ट हम लोग डेल x को थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, सो क्या होगा डेल x बाई डेल थीटा. सो इधर r क्या होगा, कांस्टेंट, सो r हम लोगों को कांस्टेंट होगा तो r ऐसे ही रहेगा, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा. ठीक है, एकदम इजी है. नेक्स्ट क्या होगा, y गिवन है, y है r साइन थीटा. ठीक है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, डेल y बाई डेल r, डेल y बाई डेल r, दैट मीन्स y को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू r. सो क्या होगा, r तो 1 हो जाएगा और साइन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट. नेक्स्ट होगा डेल y बाई डेल थीटा. सो हियर r क्या होगा, कांस्टेंट, और साइन थीटा को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, cos थीटा. ठीक है, सो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे. So del x, if we put this value in the determinant, then the determinant becomes cos theta minus r sin theta. इधर में होगा sin theta और r cos theta. So हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इससे इस मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस ये दोनों, तो क्या होगा r cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या होगा r साइन स्क्वायर थीटा. इफ वी टेक कॉमन r, देन क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी r. अंडरस्टूड. तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या दिया है कि डेल ऑफ r थीटा डेल एक्स वाई, ये निकालना पड़ेगा. सो कैसे फाइंड करूंगा, इधर में होगा डेल r बाई डेल x, डेल r बाई डेल y. इसके बाद क्या होगा डेल r बाई डेल r तो हम लोग लिख लिया. इसके बाद होगा डेल थीटा बाई डेल x एंड डेल थीटा बाई डेल y. नाउ इन दिस प्रॉब्लम क्या बोला है, इन दिस प्रॉब्लम बोला है कि r इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y. ठीक है, एंड थीटा इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. दैट मीन्स हम लोगों को r निकलना, r फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, एंड थीटा फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y. इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा. तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोगों को दिया है कि x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, ऊपर में होगा y r sin थीटा और डिवाइडेड बाई x r sin थीटा.
एक cos थीटा। क्या क्या है, दिस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दिया दिस इक्वेशन से, तो क्या होगा y बाई एक्स, इधर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा इधर एक्स y बाई एक्स, और थीटा विल बी टेन इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये तो हम लोग फाइंड कर चुका हूँ थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड करना होगा आर को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई, नाउ वी हैव टू फाइंड द आर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो आर को फाइंड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई हम लोगों को क्या करना होगा, इधर गिवन है क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे और इस इक्वेशन को भी हम लोग बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे। तो आफ्टर स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन वी विल ऐड दिस टू इक्वेशंस। So if we add these two equations after squaring, so what will become here x square plus y square and r square cos square theta plus r square sin square theta. If we take common r square, then it will become like this, x square plus y square is equal to r square, और क्या होगा cos square theta plus sin square theta। तो r square हम लोग इधर क्या होगा 1, so here will be 1, so r square is equal to x square plus y square। now हम लोगों को फाइंड क्या करना होगा, डेल आर बाई डेल एक्स। सो इधर जो आर है तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, सो गिवन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, सो पार्शियल डेरिवेटिव आर को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या होगा 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2x, सो 2 कैंसिल, डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर होगा इधर। ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डेल आर बाई डेल वाई होगा y बाई आर। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना होगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू x। सो क्या होगा डेल थीटा बाई डेल x, क्या होगा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हेयर x क्या है y बाई एक्स स्क्वायर इधर, और ऊपर क्या होगा y बाई एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। सो इधर क्या है y बाई एक्स है, तो y तो कांस्टेंट है ना, तो y सेम रहेगा, और जो 1 बाई एक्स है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सो इधर में क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में होगा न्यूमरेटर में y बाई एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर गेटिंग कैंसिल, क्या होगा माइनस y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, थीटा डेल थीटा बाई डेल वाई। सो सिमिलरली वी विल फाइंड डेल थीटा बाई डेल वाई। सो क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 बाई एक्स, क्या है क्या था y बाई एक्स। तो हम लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा इसको विथ रेस्पेक्ट टू y। सो y को करेंगे तो क्या होगा 1, और ये y बाई एक्स तो कांस्टेंट है, तो क्या होगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स। सो इधर में क्या होगा इधर 1 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो इधर क्या आया है डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स बाई आर, और डेल आर बाई डेल वाई बाई आर, और इधर डेल थीटा बाई डेल एक्स किया हुआ माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इधर भी in place of x square plus y square we can write r square, because
वी गॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. So if we put this value in this determinant, so we will get x by r, और इधर क्या होगा y by r, नीचे में माइनस y by r स्क्वायर x by r स्क्वायर. सो इफ वी कैलकुलेट दिस डिटर्मिनेंट क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब. सो इफ वी टोक कॉमन 1 बाई आर क्यूब, इफ वी टेक कॉमन 1 बाई आर क्यूब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों अभी अभी देखा है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर तो क्या होगा 1 बाई आर. सो फाइनली जो आंसर आया है डेल आर थीटा बाई डेल एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आया है 1 बाई आर. ठीक है. In my next video we will solve more problems. Thank you.